और आज की जो हमारी कहानी है काइंड ऑफ डेल्व्स इनटू द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। एक बार उन्होंने सपने में देखा कि उनके पाम में कुछ पियर्स हो रहा है, समथिंग लाइक अ नेल। एंड जब वो सुबह उठती हैं वो देखती हैं कि उनके एग्जैक्टली वही पॉइंट पे एक मार्किंग है। Welcome back everyone to another episode of Your Ghost Encounters. Before we get into the video, let me tell you all the episodes of Your Ghost Encounters are now streaming on Spotify. So आप जाके सुन सकते हो and you can enjoy the immersive audio experience that has been specially curated for this segment. जो link है to the streaming channel, it is there in the description and you can go and check it out. And उसी के साथ शुरू करते हैं आज की जो कहानी है। आज की जो कहानी है आई है भिलाई से। अब भिलाई जिनको नहीं पता, भिलाई इज एक्चुअली अ सिटी इन छत्तीसगढ़ और जिन्होंने कहानी सबमिट करी है उनका नाम हम रखते हैं सिमरन। और आज की जो हमारी कहानी है काइंड ऑफ डेल्व्स इनटू द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। ऐसे मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं जज करने के लिए कोई नहीं हूँ। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं अपना एक POV रखूँगा about the dreams and about the story जो यहाँ पे है। एंड जब भी आप लोग हमें भेजते हो, because I wasn't there to experience and I cannot investigate it to conclude, so I'll just go by your words because no matter what happens I am open to things and I respect that जिनके साथ हुआ है सिर्फ उन्हीं को ही पता होगा कितना ट्रॉमेटिक और कितना डरावना ये है। ना सिमरन को जब तक याद है बचपन से ही उनको बहुत ही विविड ड्रीम्स आते थे और ये ड्रीम से ज़्यादा ऐसा लगता था कि दे आर लाइक मैसेजेस और सिग्नल्स फ्रॉम द फ्यूचर, लाइक प्रीमोनिशंस। ऐसा होता था जैसे उनको कुछ दिखाया जाता था ओनली टू मेक अ रियलाइज दैट ये रियलिटी में भी एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। ड्रीम्स बोल दो उनको, प्रीमोनिशंस बोल दो उनको, विजन्स बोल दो, बट दे वेर वेरी विविड, समटाइम्स वेरी अनसेटलिंग एंड समटाइम्स वेरी वेरी स्कैरी एंड समटाइम्स very very realistic. Now sometimes Simran sits and thinks about these dreams and उनको लगता है कि maybe she is gifted, maybe she is the chosen one, लेकिन कभी कभी and I empathize with her, she feels like it's a burden. Now सब कुछ शुरू हुआ sleep paralysis से। Now they weren't the normal sleep paralysis जो हम लोग मूवीज में देखते हैं या फिर नॉर्मली लोग शेयर करते हैं, as in there was no demon on her chest, there were no hallucinations as such. She was pretty much aware कि she is having a sleep paralysis. वो देख रही थी खुद को, वो फील कर पा रही थी खुद को that she is breathing, she is having a sleep paralysis, that she is unable to move, which is like a classic example of a sleep paralysis. And of course sleep paralysis में जैसे होता है, आप जितनी भी कोशिश कर लो खुद को उठाने के लिए आप उठ नहीं पाओगे क्योंकि वो मोमेंट के लिए आपका नर्वस सिस्टम, आपके मसल्स, आपका कुछ भी काम नहीं करता है। लेकिन इवन दो शी वॉज अवेयर, स्लीप पैरालिसिस आर नेवर फन, दे आर नेवर समथिंग टू एन्जॉय। उनको हमेशा अनसेटल्ड करा देता था। Sometimes she used to see a lot of those things. For example, एक बार उन्होंने देखा कि there were strange people जिनके हाथों में black color के veins चल रहे थे. They weren't blood red. They were like dark black color veins running through their hands. Sometimes she used to see her mother's smiling face turning quickly and swiftly into something very demonic and very disembodied. And इतनी बार उनको ये सब experience हो गया that at one point she was like, you know what, maybe I should learn how to manage it because I know these are not real. I know this is just sleep paralysis and I need to be aware and just manage it out. And that's what she did. लेकिन धीरे धीरे sleep paralysis fade हो गया। लेकिन जो ड्रीम्स होते थे वो डार्क होते गए, वो और सीरियस होते गए। Sometimes she used to just dream running on open corridors of abandoned forts, being chased by something unseen. And sometimes she would see that she is standing in an open courtyard and वो ऊपर देख रही होती है स्काई की तरफ, when एक lady with a very dark and scary face स्काई से डायरेक्टली नीचे उतरती हैं and starts attacking her. She would wake up gasping for air, her heart pounding with fear and she drenched in sweat. फिर धीरे धीरे जो ड्रीम का फोकस था वो सिमरन के फादर के फैमिली के साइड
शिफ्ट होता गया। दे हैव ऑलवेज बीन टोल्ड दैट उनके फादर की साइड की जो फैमिली है हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन प्रैक्टिसेस ऑफ डार्क ऑकल्ट। एक बार उन्होंने ड्रीम में देखा कि शी इज़ एट हर ग्रैंड मदर्स रूम, विच इज़ क्वाइट ऑड क्योंकि वो उनके यहाँ पे नहीं रहते थे। उनका जो रूम था, उनका जो घर था, इट वॉज सेपरेट। इन द ड्रीम शी वॉज सीइंग डेड पीपल अराउंड हर, जिनको वो जानती नहीं थी, बट देखते ही उनको पता चल रहा था कि ये इंसान या फिर ये जो इंसान खड़े हैं वो जिंदा नहीं, और देखते देखते ही वो सब गायब भी हो जाते हैं। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी सीज के गैलेंड जो कि डिसीज्ड पीपल के फोटोज के अराउंड डाला जाता है, सडनली कहीं से आता है और उनके गर्दन में गिर जाता है। सीइंग दैट शी जस्ट वोक अप एंड शी वाज लाइक व्हाट द हेल वाज दैट ड्रीम अबाउट। ये कैसे कैसे ड्रीम्स देख रही हूँ। और एक ड्रीम में उन्होंने अपने एक कजिन को देखा जो कि 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई होती है। इन द ड्रीम शी सीज के वो अपने बाइक में आया है और उनको बुला रहा है दैट चल मेरे साथ चल, वेर आई विल टेक यू, इट्स वेरी पीसफुल वहां पे। एंड सिमरन ऑलमोस्ट रेडी हो भी गई थी। शी वॉज ऑल रेडी टू लीव हर पेरेंट्स, लीव हर फैमिली, लीव हर बॉडी फॉर दैट मैटर एंड गो विद द कजिन। इन द ड्रीम वो अपने ग्रैंड मदर को देखती हैं, जिनको जाके वो बोलती हैं कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को बताना दैट आई वेंट voluntarily and that I wanted to live. Now वो ड्रीम इतना रियल था that after waking up she had to calm herself down and for the next few days वो फीलिंग उन्हीं के साथ रहा। But the very next dream was something out of a horror film. अपने नेक्स्ट ड्रीम में वो देखती हैं that she is again surrounded by her father के साइड के जो रिलेटिव्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, but she cannot see her parents and her siblings. सपने में वो ये देखती हैं कि वो एक वैरेंडा के ऊपर अपना सर रखे सोई हैं और एक मिडिल एज्ड फीमेल आती हैं, लेडी आती हैं उनके पास और अपने दोनों हाथ उनके राइट हैंड के ऊपर रखती हैं और जैसे ही रखती हैं उनको एक पियर्सिंग सा पेन होता है। इट फेल्ट लाइक समवन poured acid in that area. She got very scared and she starts running towards her grandparents and जाके उधर बोलती हैं कि please call my father, I want to leave. लेकिन उनके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर कुछ करते नहीं है, वो बस उनको इतना ही बोलते हैं दैट यहाँ पे ऐसा ही होता है, तुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या क्या है। एंड देन सडनली दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जिन्स एंड डीमंस एंड अदर एंटिटीज। शी वेक्स अप फ्रॉम दैट ड्रीम, लेकिन उठने के बाद भी उनका राइट हैंड का जो सेंसेशन था वो अभी भी था। वॉज इट अ ड्रीम और अ साइन of something really dark that was unfolding? ड्रीम से इतना ज़्यादा वो डर गई थी कि वो भागने लगती हैं अपने पेरेंट्स के रूम के तरफ बीच रात और अपने मदर को उठाती हैं, पापा को उठाती हैं। मदर देख के उनको इतना ज़्यादा डर जाती हैं कि both of them are now crying क्योंकि उनकी जो बच्ची है had some really terrible dream। उस रात वो अपने पेरेंट्स के साथ ही सोती हैं। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिलासपुर के लिए निकलती हैं अपने माताजी से मिलने के लिए, उनके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं ना। उनके जो माताजी थे उन्होंने पहले से ही उनको बता के रखा हुआ था कि ब्लैक मैजिक उनके ऊपर करने का अटेम्प्ट किया जा रहा है फ्रॉम हर फादर्स साइड। एंड आफ्टर लिसनिंग टू हर ड्रीम्स द स्पिरिचुअल गाइड कन्फर्म्ड कि ये ब्लैक मैजिक ही है एंड व्हाट यू आर सीइंग, द ड्रीम्स दैट सिमरन इज सीइंग इज नथिंग बट इट्स मैनिफेस्टेशन। फिर उनके जो ड्रीम्स थे शिफ्ट होते हैं उनके 5 साल के बहन के तरफ। एक ड्रीम में वो देखती हैं दैट दे आर स्टैंडिंग इन एन एक्वेरियम एरिया एंड उनके ऊपर कोई गोली चलाता है और जब वो छुपने की कोशिश करती हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, along with the sister they came across a man who was wearing something green like a robe and he was performing exorcism. And exorcism कर रहा था एक लेडी के ऊपर जिनकी आंखें were pure black and she wasn't looking very humane. As both the sisters are standing and looking at what is happening, the person, the lady who was possessed, वो directly घूमती हैं सिमरन के तरफ। लेकिन जब वो ध्यान से देखती हैं वो सिमरन को नहीं स्टेयर कर रही थी, that possessed lady. She was staring at Simran's sister like she was trying to harm her. And the very next moment the lady opens her mouth and उनके मुंह से निकलता है hundreds of needles towards Simran's sister. सिमरन भाग के जाके उनके सिस्टर के सामने खड़ी हो जाती हैं और ड्रीम उधर ही खत्म हो जाता है। और एक ड्रीम में जो कि दिन में ही हो रहा था, सब कोई सोए थे, सिमरन भी एक नैप ले रही थी और ड्रीम में देखती हैं that there are a lot of people in their living room and everything looks fine, everything is normal and suddenly टीवी कैबिनेट के तरफ से एक बड़ा सा निडल आता है towards सिमरन सिस्टर जो कि उनके थाई में पियर्स करता है। She wakes up breathless होके पूरा
सिमरन, बिकॉज उनको रियलाइज होता है कि माताजी ने ऐसा बोला था कि बर्थडे के अराउंड जो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। एंड सिमरन की बहन का बर्थडे आ रहा था। अभी उनका जो नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ ड्रीम्स था उसका फोकस चेंज हुआ टू हर अदर सिस्टर हु वाज इन स्टैंडर्ड 12th बैक देन। एक ड्रीम में वो देखती हैं, सिमरन देखती हैं कि उनकी जो सिस्टर हैं वो उनके कंधे पे सोई हैं, वो लोग जंगल में जा रहे हैं। एंड इन द ड्रीम द सिस्टर लुक्स लाइक हर यंगर सेल्फ, नॉट ऑफ अ करंट एज। एंड उसी बीच वो देखती हैं, सिमरन देखती हैं कि एक फ्लाइंग बीस्ट आता है और सिमरन के बहन को सिमरन से स्नैच करने की कोशिश करता है, लेकिन सिमरन छोड़ती नहीं है। सो द फ्लाइंग बीस्ट टेल्स सिमरन कि नाउ यू कैन प्रोटेक्ट हर बट आई एम गोइंग टू कम बैक अगेन। एंड फिर तो कुछ नहीं कर पाएगी। उसी बीच सिमरन स्टार्टेड सीइंग ड्रीम्स ऑफ मैरिजेस। टेंट्स लगे हुए हैं, पीपल ग्रीटिंग ईच अदर, फोर्स्ड स्माइल्स। एंड वो ड्रीम्स उनको काफ़ी ज़्यादा अनसेटल कर रही थी, क्योंकि उनके माताजी ने उनको बताया था कि ये जो मैरिज वाले ड्रीम्स होते हैं दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट साइन ऑफ एनीथिंग गुड। और कुछ दिन बाद जो उनके रियल ग्रैंडफादर थे फ्रॉम पंजाब, ही पास्ड अवे। नाउ इट कुड बी प्योरली अ कोइंसिडेंस, बट द कनेक्शन एंड द टाइमिंग वाज वेरी अनसेटलिंग फॉर हर। ये जो इतने सारे ड्रीम्स हो रहे थे उनके साथ, जो इंसिडेंसेस हो रहे थे उनके साथ, इट कन्विंस्ड हर दैट these weren't just dreams, they were more like a message to her, more like a vision to her of what's going to happen, and that she has been assigned in a way to protect the people. Now even though वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन वो हमेशा जाके अपने माताजी को बताती थी और माताजी कुछ ना कुछ करके उनको शील्ड करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। कभी कभी सपना तोड़ के उठने के बाद भी सिमरन को वो सेंसेशंस होते थे। अगर सपने में वो देख रही हैं कि कोई उनको चोक कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है, तो उठने के बाद भी उनका गला दर्द करता था, और इतना ज़्यादा दर्द करता था कि कुछ दिनों तक भी बात भी नहीं कर पाती थी। अगर कहीं पे कुछ जला हुआ उनको फील हो रहा था ड्रीम में, तो उठने के बाद भी वो बर्निंग सेंसेशन उनके साथ रहता था फॉर क्वाइट सम टाइम। बट नाउ शी हैज़ एक्सेप्टेड इट, शी हैज़ ऑलमोस्ट मैनेज्ड इट। Initially she thought कि maybe it's a burden for her, but now she has taken it like a responsibility. She now completely believes in her dreams and makes sure कि वो कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके अपने फुल कैपेसिटी में वो इंसान, वो सिचुएशन को कभी हार्म ना पहुंचाए। एक बार उन्होंने सपने में देखा कि उनके पाम में कुछ पियर्स हो रहा है, समथिंग लाइक अ नेल। एंड जब वो सुबह उठती हैं वो देखती हैं कि उनके एग्जैक्टली वही पॉइंट पे एक मार्किंग है। अभी भी उनको ड्रीम्स आते हैं, अभी भी वो कोशिश करती हैं बचाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, विच इज़ इन माई आइज इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग वन कैन डू विथ सच थिंग्स। मतलब मैं जानता हूँ और मानता हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, दीज ड्रीम्स, दीज फीलिंग्स आर नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। बहुत डरावने होते हैं, बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, और वो फील आपके साथ रहता है। एंड इट इज़ नेवर फन, नेवर 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 फन टू सी समन्स डेथ, टू सी समन बीइंग हार्म्ड इन योर ड्रीम्स। एंड कुछ दिन बाद आप देख रहे हो कि वही हो रहा है एग्जैक्टली उनके साथ। ना मेरा पीओवी क्या है? मेरा पीओवी ये है कि प्रीमोनिशंस होते हैं, लोगों को प्रीमोनिशंस आते हैं, विजन्स आते हैं ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड समटाइम्स ये विजन्स इतने क्लियर होते हैं that you have no option but to actually talk it out, or at least reach out to that person जिसको आपने सपने में देखा। Of her running in abandoned forts and courtyards could be a sign of her past life, could be a sign of something that had happened to her in the past life. The case of black magic from her father's side, I can relate that too. हमारे खुद के फैमिली में ऐसा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। I think सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सिमरन अगर आप देख रहे हो और आपको पता चल रहा है कि आपकी कहानी है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू कीप शील्डिंग योर सेल्फ, कीप ग्राउंडिंग, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड इफ़ यू आर हेल्पिंग आउट पीपल, नो दैट यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगी। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ योर घोस्ट एनकाउंटर्स। इसका अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए लिंक में आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, और मेरी टीम उसको स्क्रीन करके मेरे पास लाएगी और मैं अपने तरीके से इधर शेयर करूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब
और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ डू कमेंट. आई विल सी यू सून.